Now in this lecture we start with the definition. Let G be a group of automorphisms of K. The subfield F naught of K consisting of all those elements of K x of K such that sigma x is equal to x for every sigma belongs to G. इस फील्ड को हमने ऐसे डिफाइन किया था, एलिमेंट्स ऑफ के सच दैट दिस इज फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू दिस, एंड वी हैव प्रूव्ड F naught is the subfield of K in this last lecture. Now this field is called, F naught is called the fixed field under G. It is denoted by gamma G or kg. So this is the fixed field under G. Next we have remark. Remark 1. Let P be the prime subfield of K. Let P be the prime subfield of K. We know that P is contained in every subfield of K. We know that P is contained in every subfield of K. In particular, P is contained in F naught, because F naught is the subfield of K and P is contained in every subfield. Therefore P is contained in F naught, where F naught is fixed field under G. This implies sigma x is equal to x for all x belongs to P and for all sigma belongs to G. Because this result is true for every element of F naught, but P is contained in F naught, therefore this result is also true for the elements of P. Thus every automorphism, because this is true for all sigma, therefore every automorphism of K is a P automorphism, because it fixes the each
sigma fixes the elements of P, therefore each automorphism of K is a P automorphism. Second remark, Yeah. every member of G can be regarded as an F naught automorphism of K, because it also fixes the elements of F naught. Therefore every member of G is F naught automorphism of K, where F naught is the fixed field under G. Now the third remark is, if K is a field extension of F and G is a group of F automorphisms of K, then F is contained in F naught. Because sigma G is a group of F automorphisms of K, it means sigma x is equal to x for all x belongs to F. तो क्लियरली F के एलिमेंट है किसमें आ गए F नोट के, क्योंकि हर एक सिग्मा F नोट के एलिमेंट्स को भी फिक्स करता है, और अगर F के एलिमेंट को फिक्स कर गया तो क्लियरली F इज कंटेन्ड इन F नोट, and this is a subfield of K, where F naught is fixed field under G. Next we have an example. Let K is equal to Q root 2 and the minimal polynomial of root 2 over Q is, जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगी रूट 2 की क्या आएगी x स्क्वायर माइनस 2, देयरफॉर Q रूट 2 Q इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट 2, दिस इज 2. So clearly this is KQ is equal to 2. Therefore basis of K में कितने एलिमेंट आ गए 2. Therefore basis 1 रूट 2, एक 1 और ये रूट 2, ठीक है. दिस इज द basis of K over Q. बेसिस कैसे लिखते हैं, 1 तो लिखना है, और जो ये रूट 2 है जिसकी ये मिनिमल पॉलिनोमियल है दूसरा एलिमेंट ये लिखना है. सो दिस इज द बेसिस ऑफ, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स लिखने हैं, तो दिस इज द बेसिस ऑफ K ओवर Q. We want to find Galois group of K over Q. This we want to find. उसके लिए ऐसे करेंगे कि ऐसे हमने इसकी वैल्यू लिख ली और ये इसका बेसिस लिख लिया. अब आगे कैसे करना है, क्लियरली any element
any x belongs to K, x can be written as a linear combination of this over Q, A1 plus B root 2, where AB belongs to Q. Let sigma be any automorphism of K, therefore sigma A is equal to A for all A belongs to Q. कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे हम, तो हमने पीछे एक रिमार्क में प्रूव किया था, इफ एफ नॉट इज द सबफील्ड फिक्स्ड field, then if P is the prime subfield of K, then every automorphism P automorphism अगर वो P प्राइम सबफील्ड है तो एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ K इज P ऑटोमॉर्फिज्म. तो क्लियरली Q इज द प्राइम सबफील्ड बिकॉज Q इज द प्राइम सबफील्ड of K, therefore every automorphism of K is Q automorphism. Therefore this, as we know, this is the Galois group of K over Q, and it contains all the Q automorphisms of K. It contains all the Q automorphisms of K. Now these are the Q automorphisms of K. Therefore जितने भी ये एलिमेंट आएंगे, that are the elements of this Galois group. So next, so every sigma fixes the elements of Q. Further, we know that sigma root 2 is a conjugate of root 2 over Q. ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा था. अगर रूट 2 किसी पॉलिनोमियल का रूट है x² - 2 का जैसे, तो उसका इमेज अंडर द ऑटोमॉर्फिज्म इज द कॉन्जुगेट ऑफ रूट 2 ओवर Q, वेयर रूट 2 की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है तो उसी का ये भी रूट होगा. एंड रूट्स ऑफ दिस आर प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है इसका मतलब ये इस पोलिनोमियल का भी रूट होगा. जिस पोलिनोमियल का ये रूट है ये भी उसी पोलिनोमियल का रूट है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है. बट इसके जो रूट्स हैं वो दो ही हैं, एक रूट 2 और माइनस रूट 2. इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, ये रूट 2 भी हो सकता है और माइनस रूट 2 भी हो सकता है.
तो जितने भी सिग्मा होंगे, एक तो ये कंडीशन होगी और दूसरी होगी कि यहाँ इसकी वैल्यू ये आएगी या इसकी वैल्यू ये आएगी। इन दो कंडीशन से हम फाइंड करेंगे ग्रुप ऑफ गाल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर Q। सो फर्स्ट केस लेंगे हम, फर्स्ट केस हमारा होगा इफ सिग्मा रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 एंड ये तो ऑलवेज ही है, ये दो कंडीशंस हो गई। तो अब जब भी सिग्मा हमने फाइंड करना है तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर x बिलोंग्स टू k। अगर हमें ये वैल्यूज पता चल जाती हैं तो हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एनी एलिमेंट ऑफ k कैन बी रिटन एज xa प्लस b रूट 2। अब इसका इमेज लेंगे हम, इसका आ जाएगा सिग्मा ए, होमोमॉर्फिज्म करके इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू सिग्मा बी सिग्मा रूट 2। अब ये ए बी किसके एलिमेंट्स हैं? क्यू के एलिमेंट्स हैं। तो क्यू के एलिमेंट को ये करता है फिक्स, तो इसकी वैल्यू ए आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखना बी, इसकी वैल्यू बी ही आएगी, सिग्मा बी की वैल्यू बी, क्योंकि ए फिक्स कर रहा है। और रूट 2 की वैल्यू क्या आ रही है? रूट 2, सिग्मा रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो इस तरह से ये x का x ही आ गया, तो x का इमेज x ही आ गया। और सो ये फंक्शन है हमारे पास सिग्मा, ये हमारे पास k है। तो देखो ये q की एलिमेंट को भी फिक्स कर गया, रूट 2 को भी फिक्स कर गया, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये हर एक k के एलिमेंट को भी फिक्स कर गया। तो सिग्मा क्या आ गया? आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, Q ऑटोमॉर्फिज्म। सो किसी भी ग्रुप में हमने फाइंड करना है गाल्वा ग्रुप ऑफ दिस। तो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, वो हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। तो एक एलिमेंट इसका ये आ गया। अब दूसरा एलिमेंट यहां से आएगा व्हेन सिग्मा रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2। इसको लिख देंगे माइनस रूट 2, बाकी ये एज इट इज ही लेना हमने। फिर वही करना है हमने, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, तो सिग्मा ए की वैल्यू ए ही आएगी, बी की बी आएगी, लेकिन सिग्मा रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2। तो इस बार जो x की वैल्यूज हैं, अब ये x क्या है? a प्लस बी रूट 2, x की वैल्यू है a प्लस बी रूट 2। तो इसका इमेज क्या आ गया? माइनस चेंज होगी। तो ये दूसरा फंक्शन बन गया हमारे पास सिग्मा, जो कि x की वैल्यूज लेंगे उसका इमेज ये आ रहा है। तो इसका मतलब दो ही, क्योंकि इसकी दो ही ऑप्शंस आई थी ये वाली, तो हमारे पास सिर्फ इस गाल्वा ग्रुप में दो ही एलिमेंट आएंगे, एक आइडेंटिटी मैपिंग और एक दूसरा जो Q ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो गाल्वा ग्रुप ऑफ K over Q has 2 elements, its order is 2।